ওইতো الحمد لله كفانا مع عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالسَّلَامِ. محترم ترمام حاضرین، گزشتہ جو بیان ہوا تھا کہ اخلاق کے بارے میں، اس وقت اخلاق ہم کو درست کر کے چلنا بہت ضروری اہم چیز ہے. معاملات اور ایک معاشرات ہے، اس میں بھی لوگوں کے ساتھ مل جل اور اس کے ساتھ معاملات اٹھنا بیٹھنا بہت ہوتا ہے. تو ان میں ہم کو بہت تکلیفیں کسی سے پہنچتی ہو، لیکن اس زمانے میں اور اس وقت میں ہم کو اخلاق کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو صبر اختیار کرنا پڑے گا. اور وہ صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اختیار کرے صدمہ جب پہنچ جائے، مصیبت جب پہنچ جائے تو پہلے مرحلے میں جب تھک گیا کچھ کر نہیں پائے تو پھر صبر کر کے بیٹھے، اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا تو ایک مطلب ہوتا ہے آخر میں، لیکن کمزور. پہلے میں صبر کر لیا تو پھر وہی مکمل اور کامل صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں آپ کو ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے دنیا کے اندر سورج کی تپش اور چاند کی کرنیں جن جن چیزوں پر پڑتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے لیے مغفرت کی نہ کرے. وہ کیا چیز ہے آپ کو بتاتا ہوں. تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جانب سے، دوسروں کی جانب سے جو تکلیفیں آ کے پہنچتی ہیں اس پر صبر کر لینا. تبھی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جس پر سورج کی تپش پہنچتی ہے تمام کے تمام چیزیں اس بندے کے لیے مغفرت نائب ہوتی رہتی. خود اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، لہذا صبر کا درجہ بہت بلند ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو میرے پاس مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے. اللہ رب العزت نے یہ دو چیز بالکل وضاح حق کے ساتھ بیان فرمایا اور بعد میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ میں تم کو امتحان لوں گا، میں تم کو آزمائش کروں گا بھوکے کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے، والانفس والثمرات، اور اپنی جان کے اندر خطرات پیدا کرتے ہوئے اور پھلوں باغوں کے اندر کمیاں دیتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے بھی. کبھی بڑھا کر کے دے دے تو پھر اس کے اندر آزمائش ہے کیسے تصرف کرتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، اور پھر کبھی کم کر کے دیتے ہیں کہ افسوس اور پھر گریازاری کیسے گا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بعد میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کو مصیبتیں آ کے پہنچتی ہیں، آفتیں آ کے پہنچتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہیں مر جائے تو پڑھیں، یہ نہیں، بلکہ مصیبت کا ٹائم آ جائے، کوئی بری خبر مل جائے تو اس وقت آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ کے پاس لوگ کے جانے والے ہیں. یہ پڑھ لیں گے. اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں مصیبت آتی رہتی ہے تو صبر کے بدلے میں یہ پڑھتے رہتے ہیں, جزا خدا کرتے ہوئے اللہ کے حدود کو پار کرتے ہوئے نافرمانیاں نہیں کرتے, تو ان کے لیے خوشخبری اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جا کر کے کامیاب لوگ ہیں اور ان پر اللہ کی جانب سے رحمتیں ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ کی جانب سے ان پر رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون, اور یہ جو لوگ ہوں گے یہی ہدایت یافتہ ہیں, مکمل کامل ہدایت یافتہ. لہذا صبر اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور نہ پھر مشکل ہمارے لیے ہے, کیونکہ اسے ٹھیک نہیں ہے فضا اور صبر اپنائیں گے نہیں, اخلاق کو درست نہیں کریں گے تو معاملہ پھر ایسے ہی سلجھے گا نہیں بلکہ اس کے اندر آگ لگ جائے. تو سنیں آپ بتائیں ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے صبر عن المعصیت اور ایک ہے صبر عن الطاعت اور ایک ہے صبر عن الآفات مسائل. یعنی ایک صبر ہے کہ آپ صبر کریں, صبر کے معنی ہے رکنا, صبر کے معنی ہے رکنا, رکے رہنا. تو بتائے ہیں کہ صبر کے اندر 3 حرف ہے, ایک ہے صاد اور ایک ہے با اور ایک ہے را. صاد کے معنی ہے صالح نیک ہونا اور با کے معنی ہے برداشت کرنا اور را سے رضا الہی ہے یعنی اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے تکلیفوں کو پھر رضا الہی کو حاصل کرتے ہوئے نیک بننا. یہ جا کر کے کسی نے اس طرح سے تحقیق کر کے اس کی تعریف اور اس کا مطلب یہ لکھے ہیں, لیکن یہ صبر لفظ کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا معنی ہے رکنا. تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہوئی ہیں. آپ اطاعت کے اندر رکے رہے یعنی اللہ کی عبادت کے اندر رکے رہے, کوئی صدمہ آ جائے, کئی تکلیفیں آ جائے, کئی پریشانی آ جائے, نماز نہ چھوڑے, جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو کرتے رہے, تو یہ جا کر کے صبر علی الطاعات ہیں. اور ایک ہے معصیت یعنی صبر علی المعصیت یعنی گناہ ہو جائے, گناہ کا موقع سامنے آ جائے, گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے, اس سے رک جائے, تو یہ جا کر کے صبر عن المعصیت. اور ایک ہے صبر علی الآفات یعنی مصیبت آ جائے, جیسے کہ آپ بتائیں اللہ رب العزت آپ کو آزمائیں گے بھوکے پھل کے ذریعے سے, پھل اور باغات کے اندر کمی کرتے ہوئے اور نفس و جان کے اندر بیماریاں پریشانیاں پیدا کرتے ہوئے. یہ تمام آپ کے لیے آفاتیں ہیں, مصائب ہے, آپ پر ہو یا آپ کے گھر والوں پر, یہ تمام آپ کے لیے آزمائش ہے. ان تمام پر آپ صبر کریں اور جیسے شریعت کا طریقہ ہے ایسے آپ کھاتے ہوئے چلے جائیں. تو یہ صبر عن الآفات اور صبر عن المصیبت, یہ 3 قسمیں ہوئی. اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے اور ایک سے صابر اور شاکر تھے. اللہ کے نبی کے یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تو رہے ہیں لیکن مکمل 10 سال رہے ہیں, اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا, کسی دن حضرت انس نے میرے بارے میں اف نہیں کہا. یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا کرنا تھا ایسے کیوں کیا ہے, یا ایسے کرنا تھا ایسے کیوں کیا ہے, کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. یہ ہے حضرت رحمت للعالمین. اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت انس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کچھ نہیں فرماتے ہیں, اور پھر جا کر کے ایک دن حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مہمان آیا تھا, کچھ لانے کے لیے بھیجے تھے. انس جا کر کے بہانہ کر کے راستے کے اندر رکے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کوئی پٹائی ہو جائے تاکہ برکت حاصل ہو جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انس کہیں گر گیا ہوگا, کہیں اس پہ ٹھکرے لگ گئی ہوگی, یہ فکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں حضرت انس کی تلاش میں, اور جا کر کے اس کو راستے میں جو پاتے ہیں تو چمٹ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں تجھ کو کیا ہو گیا, اتنی دیر ہو رہی ہے, آتے نہیں ہے. یہ حضرت انس کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ کیسے صبر ہے,
इसी वजह से रहमतुल्लिल आलमीन का सबर का इंतहा ये है, घर के अंदर 2 महीना तक आग नहीं जलती थी और कुजरों पर बसर करते थे। यहाँ तक कि शेब इब्न अबी तालिब का वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को और बनी हाशिम को और बनी अब्दुल मुत्तलिब को, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर खा थे, जो कुछ मुसलमान भी थे और कुछ मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन सबको काफिरों ने बैठाट करते हुए शेब अबी तालिब के अंदर बंद कर दिया था। कोई खाना पीने नहीं देते था। उन्होंने एक आसनामा लटका करके काबा के अंदर रख दिया था कि उनके साथ बैठक है, कोई मामला, कोई लेन देन, और उनको यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन 3 साल के बाद उस आसनामा को जो लटका करके रखे थे, दीमक ने खा लिया था। फिर जाकर के उन्होंने उसको तोड़े हैं, सिर्फ अल्लाह का नाम इसके अंदर बाकी रहा था, सब खत्म हो गया था। फिर जाकर के उनको यहाँ से रेहा मिला है। तो ये 3 साल के बाद, 3 साल में उनको तो खाने के लिए थोड़ा बहुत पहले मिलता था, बाद में तो कुछ ही नहीं मिला। लेकिन सब्र अला ताअत देखिए और सब्र अला मासियत देखिए कि किस तरह अल्लाह की इताअत पर बाकी रहे, दीन छुड़े नहीं, इधर उधर नहीं गए, बल्कि फिर और मजबूत होकर के आगे जंग जहाद के लिए तैयार हो गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनको उहुद के अंदर दांत मुबारक शहीद किया गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा मग़फ़िरहुम फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा लीजिए, जिन्होंने मुझे मारा है उन्होंने नहीं जाना है, उन्होंने नबी को नहीं जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और खून का खतरा नीचे गिरने नहीं देते हैं, जल्दी मुसा कर लेते हैं ताकि अल्लाह का गुस्सा भड़क न जाए और वो सब हलाक न हो जाए। ऐसे ही ताइफ से जब आप वापस लौटे थे, आदत होने के बाद अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह आप तो जाते हैं जिसने मुझको किसी के हाला कर देते हैं और मुझे जलील कर देते हैं, किसी के बारे में बददुआ नहीं कर रहे हैं, खुद जा करके अपनी हालत अल्लाह के सामने पेश कर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये बातें सुने हैं और फरिश्ते जिब्राइल को भेजे। जिब्राइल आकर के कहता है मोहम्मद आपकी बातें अल्लाह ताला ने सुन लिया और मुझे भेजा है और एक फरिश्ते साथ में भेजा है, और वो कहाँ से जिम्मेदार है, उनको क्या सजा देना है बताइए, वो सजा दे सकते हैं। तो वो फरिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है आप बताए तो दूर कहाँ से इकट्ठे करके पूरे ताइफ वाले को खत्म कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये नहीं मानेंगे तो मेरा दीन हो सकता है, आइंदा जाकर उनकी औलाद मान ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का इख्तियार किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। और बेशुमार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कहा गया कि मक्का के तमाम पहाड़ों को सुना बना देंगे, एक नहीं, बताया गया कि तमाम पहाड़ों को आपके लिए सुना बना देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुझे पसंद नहीं, मैं एक वक्त खाना खाओ तो आइंदा उसके लिए मेरा खाना ना रहे, ये मैं चाहता हूँ ताकि आपके लिए मैं याद कर सकूं, ताकि जब खाना ना हो जाए आपको याद करो और जब फिर कभी खाना मिल जाए तो आपका शुक्र करो, आपकी तारीफें करो। तमाम पहाड़ों को अल्लाह ताला की जानिब से ये फैसिलिटी दी गई है कि सब सुना बना देंगे। अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया। ये सबर हालत ताअत है। उसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उम्मती के लिए सामान जितना हो जाए, सुने के पहाड़ दिया जाए, छाड़ दिया जाए, फांक दिया जाए, उसका मुंह बढ़ने वाला नहीं। जब कब्र के अंदर जाएगा मिट्टी उसका मुंह बढ़ ले तो फिर जाकर के उसकी ख्वाहिशें पूरा हो सकती है, ऐसे पहले नहीं। इसलिए ने कुछ नहीं कहा। और ज़िनाल क़ल्ब, जो कि बेहतर मालदार वो होता है जिसका दिल मालदार होता है। दिल मालदार बना दीजिए, जितना अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहिए, खुश रहिए, इबादत के लिए अच्छे रहिए। बस ये ही आपके लिए मालदारी की जो ऐशो आराम है वही इसके अंदर मिल जाए। दूसरे इस्लाम ने फरमाया कि खैरुल ग़िना ग़िनाल क़ल्ब, दिल की मालदारी है। माल कितना हासिल कर लेंगे और कितने माल के अंदर आप ऐशो आराम कर लेंगे, आपको आराम मिल जाएगा, ये नहीं है, दिल की मालदारी है। ये सब्र है, सब्र के मकामात है। नबी इस्लाम इस तरह सब्र क्या करते थे। और नबी इस्लाम ने तमाम अज़वाज मुतहरात से ये गुस्से करते, तमाम ने मालदारी को तलब किया, कहा कि मुझे और माल चाहिए, लेकिन सब अज़वाज मुतहरात मिल गया और कहा कि हमको वो जो मिलता है उसके अंदर इजाफा करना चाहिए। नबी इस्लाम ने गुस्सा कर लिया और कहा कि 1 महीने तक तुमसे नहीं मिलेंगे, और ऊपर मंजिले में चढ़ गए हैं। परेशान हो गए ये खबर सुनते हुए, यार इधर उधर 2-3 मरतबा चक्कर लगाने के बाद फिर जाकर के खादिम के जरिए से इजाजत मिल गई तो गए नबी इस्लाम की खिदमत में और कहा कि सुना है आपकी तमाम बीवियों को तलाक दे दिया। नबी इस्लाम ने फरमाया ऐसा नहीं है,
नबी इस्लाम बुरिये पर जाकर के लेटे हैं, ऊपर कुछ बिछाया हुआ नहीं था, निशाना जाकर बदन पर पड़ गया है। नबी इस्लाम ने इसको क्या है, और बाद में उमर से बैठे रहे और चारों तरफ आंखें घुमाए और देखे हैं एक कुएं के अंदर से जो भी एक मुट्ठी रखी हुई है और जाकर 3 छमड़े हैं जो बगैर जवाबत दिए हुए एक कमरे के अंदर है, कुछ नहीं। हज़रत उमर रो पड़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया रोए क्यों? बताया है कि आपके घर की ये हालत है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, देख कर कैसर और ये किस तरह के बादशाह है, मालदारी है, आपको मालदारी दुआ फरमा दीजिए उम्मती के अंदर उसाद पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी ऐसे ही तकिए के अंदर ठेक लगाए हुए थे, जल्दी से बैठ गए और कहा उमर आपको इस बात के अंदर अभी तक शक है, ये तो काफिरों के लिए दुनिया के ऐशो आराम है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा। तो ये सबर की हालतें हैं, ये तमाम वाक़यात से हम सबर क्या चीज़ है समझ सकते हैं। नबी इस्लाम ने एक दिन एक कुजूर अपने घर से उठा करके तनाव फरमा लिए थे, फिर परेशान पूरी रात नींद नहीं आती, रोटी इधर बदलते हैं कभी उधर बदलते हैं, अज़वाज मुतहरात से पूछा रात भर से नींद क्यों नहीं आ रही है? बताया गया है कि खजूर घर से उठा करके खा लिया था, हो सकता है ये सदका का खजूर हो जाए, हमारे लिए कि सदका यानी ज़कात के माल तो खाना जायज़ नहीं है। हालांकि घर के अंदर है, अपने घर के अंदर है, अपना ही खजूर होता है, लेकिन फिर इसके अंदर शौक हो गया तो पूरी रात नींद नहीं आ रही, इधर उधर करवट फिरते रहे। एक सहाबी का ऐसे तरह वाक़या है, घर के पड़ोस के अंदर एक का खजूर का सुबह सवेरे उठ जाते हैं और खजूर यहाँ से उठा करके उनके यहाँ रख देते हैं, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे और हो सके तो उसके खजूर खा ले। ये फिर जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये तकवा है, ये जाकर के सवा अलग है, ये गुनाह से बचने के लिए और बचवाने के लिए ये है, ये सबर अला है, इस तरह सबर करना। ऐसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या ये आता है कि एक दिन उसके एक गुलाम ने खाना पेश किया है, तो हज़रत अबू बकर ने भूख के अंदर एक लुक़मा तनावुल फरमा लिया। वो गुलाम कहता है कि हर दिन आप पूछते हैं खाना कहाँ से लाया है, आज नहीं पूछे क्या बात है? अबू बकर ने कहा कि भूख की इंतहा है, इसी वजह से कुछ नहीं सका। एक लुक़मा खाने के बाद बताया कि आप बताओ किसने खाना लाया? वो कहते हैं जाहिलियत के ज़माना में मैं गांव के करीब से गुजरा था और उनके यहाँ एक बीमार था, मैंने मंत्र पढ़ करके उनको तंदुरुस्त किया था, आज उनकी यहाँ शादी थी, मेरा गुजर उधर हुआ था तो उन्होंने कुछ खाना दिया है, ये आपकी खिदमत में हाजिर किया, और ये मंत्र पढ़ना हराम था। उसी वजह से अल्लाह के ये नबी के सहाबी हैं अबू बकर, उन्होंने ये देखा कि ये हराम लुक़मा है तो उसको तय करके निकालने की भी कोशिश किया है, लेकिन तय नहीं हो रही, क्योंकि एक लुक़मा है, पेट खाली है। किसी ने कहा कि पानी अंदर दीजिए तो फिर पानी के जरिए से आ जाए, तो एक लुका पानी मंगाया और पानी पीते रहे और फिर तय करते रहे, आखिर वो लुक़मा निकल के आ गया है। किसी देखने वाले ने कहा एक ही लुक़मा के लिए इस तरह की तकलीफ, तो बताते हैं अल्लाह के नबी ने बताया है किसी के जिस्म के अंदर गोश्त का कहीं भी बूटी बन जाए हराम लुक़मे की वजह से तो वो आग के अंदर जरूर जले, तो इसी वजह से मुझे ये डर है कि मेरे एक भी गोश्त का एक बूटी भी आखिरात के अंदर दुज़ख के अंदर ना जले। इसी वजह से ये हज़रत अबू बकर ये जाकर के वाक़यात इताअत के है, यानी अल्लाह की इताअत पर सब्र है और अल्लाह के और गुनाह से बचना है। ये खाने से तो गुनाह हो जाता, जब जान लिया है तो गुनाह हो जाता, गुनाह से बचना है ये सब्र, और ताअत पर बाकी रहे ये सब्र है। इस वजह से हमको ये तमाम अपनाना पड़ेगा और बहुत सारे बात है। उसी वजह से इस नबी की उम्मती बाद वाले, ये नबी भी ये सहाबी भी तो उम्मती हैं, लेकिन बाद वालों में से ये वाक़या है कि हज़रत रायपुरी के बारे में आता है कि बताएं कि जो भी नजराना पेश आता था सब जाकर के फकीर मुस्लिम के अंदर तस्लीम कर लेते थे और मरने से पहले ऐसा किया है कि अपना जो कपड़ा भी है वो दूसरे के हवाला कर दिया, ये मालिक है, आप इसका मालिक है, लेकिन मैं जब जरूरत पड़ जाए पहनूंगा तो आपसे मांग करके पहनूंगा ताकि मेरा इंतकाल ऐसा हो जाए कि मैं किसी चीज का मालिक ना रहूं। फिर ऐसा ही किया है, जब जरूरत पड़ते तो उससे मांग करके पहनते थे। ये जाकर के नबी की बाद वाली उम्मती की यह हालत है, ये सब्र है और ये जाकर के उनकी यह आखिरी हालत है। वाक़यात तो और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बता रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया है, तो हमको ये जाकर अपनाना पड़ेगा। इस वक्त में अखलाक को दुरुस्त करने के साथ साथ और हमको ये सब्र इख्तियार करना पड़ेगा, और ना बात बात में अगर बातें उलझ जाएं तो फिर मामला बनने का नहीं है। और आज का सजा जहाँ तक पहुँचे हैं हमको सब्र एक हद तक इख्तियार करना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं बनेगा। और ये नहीं है कि हम सब्र करते करते ये जाकर के तकारिया फितना एक बताते हैं किताब के अंदर लिखा हुआ है। तकारिया फितना के अंदर हुआ था कि
किसी को बताया गया है कि आप यहाँ रुके रहे, हम हथियार लेके आए आपको कत्ल करेंगे, और उसकी हिम्मत इतनी तक नहीं थी कि वो चला गया कि यहाँ से भाग जाए, यहाँ खड़ा ही रहा, वो हथियार लेके आया तो भी उसको मारा। ऐसा नहीं है, इस तरह कम हिम्मत भी नहीं होनी है कि वो जाकर के हमको छाए रहे और मार के आ जाए, नहीं, बल्कि पहले हम जाकर के सब्र करें, मामला उलझते हुए ना दे और फिर हमारा काम बन जाए। इस वक्त ये जरूरी है भाई। तो फिर गुज़श्ता जुमा में अखलाक के बारे में बताया था, आज सब्र के बारे में बताया है, और फिर मौका मिल जाए तो जरूरी जो चीजें होते हैं आइंदा बताते रहेंगे। अल्लाह ताला यहाँ कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत